Welcome to VLearn, that is Virtual Learning Network. Today we will discuss in this session that how can we set up the organization and what are the various forms of business organization. In this session I will cover up the concept of business organization, their characteristics, like as you know that there are three forms, basically proprietorship, partnership and joint Hindu family business, so that with the help of these organizations we can set up the business. How can we identify the merits and demerits of these forms? So in this session I will cover up these topics. We will discuss the suitability of these forms, their steps, information of these business organization. First of all, there is a need to understand the proper introduction of these principal forms of business organization. जैसा कि हम जानते हैं कि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस और उनके एसोसिएशंस के बारे में, उनके फॉर्म्स के बारे में। तो बिजनेस व्यवसाय वो प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप अपने सर्टेन गोल को अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स। बिजनेस का मेन मोटिव है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट को मैक्सिमम करते हुए और कॉस्ट को मिनिमम करते हुए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करा सकते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन की कंपैटिबिलिटी डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन के की एट्रीब्यूट्स पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक नीड्स क्या हैं, जिससे कि आप एप्रोप्रिएट फॉर्म में बिजनेस को परफेक्ट एनवायरनमेंट के साथ रन करा सकते हैं। So let's move on in my next slide. Basically as you are seeing that in organizational forms, जो भी व्यवसाय को चलाने का तरीका है, जो भी इसके क्लासिफिकेशंस हैं, उसमें सबसे पहले आप डिटरमिन करते हैं owner's objective. For suppose if you are an entrepreneur, if you are a risk bearer or if you are a businessman, then first of all you have to decide that what's your goal? In which manner you are going to set up your business? So owner's objective is to first of all what's his or her liability, their profit distribution, taxation means कितना tax उसको pay करना है, and capital structure is a very essential element. Capital पूंजी का निर्माण, पूंजी को लोन लेना है, ओनर ने खुद ने अपनी कैपिटल लगानी है। इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ प्रोजेक्ट। कैसे वो डीलिंग्स करेगा आउटसाइड वर्ल्ड से, जो अदर ओनर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स हैं, जो कि इसके इंटरनल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो कि मार्केट और एनवायरनमेंट की एनालिसिस करते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है, उनका गोल क्या है, राइट, स्पेशल पर्पस है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए एनकरेज करना एंटिटीज को, जो भी स्मॉल बिजनेस है या अफोर्डेबल हाउसिंग है उनको मैनेज करना, उनको मोटिवेट करना, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी विल डिस्कस the various forms of organizational. It is developed by the business owners. So as you are able to see that first of all sole proprietorship, second one is general partnership, third one is corporation, fourth one is joint Hindu family and fifth one is cooperative societies. So sole proprietorship, general partnership, corporation, joint Hindu family and cooperative society. So there is need to go through their concepts, their basis, and then we are able to analyze the merits and demerits of these business forms.
So first of all, we will discuss about the definitions. The basis of difference is definition. Sole proprietorship. As its name indicate, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, sole proprietorship वो persons होते हैं जिनका आइडिया खुद का होता है और वो मैनेज भी एक इंडिविजुअल के थ्रू किए जाते हैं. General partnership. Partnership is an association between two persons जो इक्वली प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं. कॉर्पोरेशन निगम या कंपनी जिनका मेन मोटिव है गवर्नमेंट द्वारा निर्मित जितने भी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, रूल्स हैं, उनको क्रिएट करके ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना, ये कॉर्पोरेशन कहलाता है. नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज फॉर्मेशन. फॉर्मेशन बनाने का तरीका. सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाने के लिए कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. जनरल पार्टनरशिप को मैनेज करने के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जिसको हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं. कॉर्पोरेशन के दो डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक फिलिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सेक्रेटरीज के साथ उनकी पेमेंट फी करना, उनको कॉर्पोरेशन को मैनेज करने के लिए एसोसिएशन जितनी होती हैं, जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना. ये फॉर्मेशन के बेसिस पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप, जनरल और कॉर्पोरेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. थर्ड वन इज गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स. क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है? फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप नॉन रिक्वायरमेंट. जनरल पार्टनरशिप नॉन रिक्वायर्ड. मोस्ट हैव अग्रीमेंट्स. बेसिकली इनके अग्रीमेंट्स होते हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस. एंड व्हाट अबाउट कॉर्पोरेशन? कॉर्पोरेशंस के लिए आपको जो भी लॉ द्वारा निर्धारित जो भी मैनेज करने के लिए उनको रूल्स बताए गए हैं, जो आर्टिकल्स बताए गए हैं, वो उनको सबमिट करने होंगे. नेचर ऑफ ओनरशिप. अब ओनरशिप के बेसिस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. फॉर सपोज सोल प्रोप्राइटरशिप, इट इज होली मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल. व्हाट अबाउट जनरल पार्टनरशिप? इनके जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो भी पार्टनर्स रिसीव करते हैं, वो इक्वली प्रॉफिट और लॉस के फॉर्म में शेयर करते हैं. In corporation, residual claim on corporate equity and right to board for directors and essential governance. गवर्नेंस को मैनेज करने के लिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज. Liability. Sole proprietorship, they are liable for all debts and obligations. In general partnership, jointly they can meet out their obligations, meet out their liabilities. In corporations, the shareholders have limited liabilities. Taxation. On the basis of taxation, sole proprietorship, not a taxable entity. General partnership, basically it's not a taxable entity, but allocation of income and loss allowed within partnership before pass through. जितने भी आपके income और loss के allocations होते हैं, वो equally decide किए जाते हैं, equally division होता है इनका. In corporation, एक separate entity को taxed किया जाता है, like capital gains, dividends, इनको double taxation के नाम से consider करते हैं. मैनेजमेंट. सोल प्रोप्राइटर को मैनेज करने के लिए उनका खुद का एक इंडिविजुअली कंट्रोल होता है. ऑल पार्टनर्स जो पार्टनरशिप में होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू मैनेज किए जाते हैं और उनकी इक्वल राइट्स होती है. इन कॉर्पोरेशन, जितने भी उनके इलेक्टेड शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी को रन कराने के लिए उनमें फंड इन्वेस्ट करते हैं. बोर्ड हमेशा जो भी उनके अपॉइंटेड ऑफिसर्स हैं, उनको टास्क डेलीगेट करते हैं. Transfer ownership interest. On the basis of transfer ownership interest, we can also give some basis of difference. Like in sole proprietorship, ये transferable नहीं होते. In general partnership, limited right होते हैं इनके transfers के, and with the consent of all partners, we can transfer the rights. And in corporation, ये freely transferable होते हैं formal और informal markets में. चाहे वो आपकी capital, जहाँ पे आप long term markets को indicate करते हैं, purchase करते हैं, उनके थ्रू आप ये freely transfer कर सकते हैं. विड्रॉल ऑफ ओनर. सोल प्रोप्राइटरशिप में यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाती है. जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की डेथ
या विड्रॉ से आपकी पार्टनरशिप टर्मिनेट हो सकती है। बट इन कॉर्पोरेशन की एक अनलिमिटेड लाइफ है, बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। स्पेशल पर्पस एंटिटीज, लिमिटेड पार्टनरशिप है, जनरल मैनेजर की लिमिटेड लायबिलिटी है, एलएलसीज है, लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन है, सब चैप्टर्स कॉर्पोरेशन है, आइडेंटिकल माने जाते हैं कॉर्पोरेशन के लिए, जिसमें आप लॉसेस और इनकम को पास थ्रू कर सकते हो। एलएलसीज के केस में प्रोडक्शन जितनी होती है, जितने भी आपके पार्टनरशिप टैक्स ट्रीटमेंट है, उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस बट इन फॉर्म्स को आपने डिफरेंसेस के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया। अब बात आती है ज्वाइंट हिंदू फैमिली भी है, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर सकते हैं, चला सकते हैं। बेसिकली जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को गवर्न करती है और ये लॉ के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट की जाती है। ऐसी फैमिली जहां पे फैमिली मेंबर्स अनडिवाइडेड हैं और जिनको को पार्टनरशिप राइट है बर्थ से, वो आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पार्ट्स हैं। इसका परिवार का जो भी एक मुखिया है, जिसको आप मॉडर्न लैंग्वेज में कर्ता के नाम से जानते हैं, कर्ता की असीमित दायित्व होते हैं। कर्ता वो व्यक्ति होता है जो परिवार का सबसे बड़ा मुखिया होता है एंड ही हैज राइट टू मैनेज द बिजनेस। उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर सकते हैं? बेसिकली इट कवर्स द हिंदू प्रोविजन, सो इट इज टोटली मैनेज्ड बाय हिंदू लॉज। जो चिल्ड्रन है वो इसके मेंबर्स बाय बर्थ से बन जाते हैं, मींस उनकी लेगेसी उनको ट्रांसफर हो जाती है। जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, वो आपका कर्ता होता है। किसी लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस फॉर्म को आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो? बेसिकली वहां सुटेबल होता है जहां पे रनिंग बिजनेस आप कर रहे हैं। इसको कंटिन्यू करने के लिए भी बिजनेस हमेशा जॉइंट फॉर्म में होना चाहिए। इसकी लिमिटेड फाइनेंशियल और मैनेजरियल रिसोर्सेज हैं। इनको आप फर्दर ट्रेन कर सकते हैं, बिजनेस ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंडिजिनस बैंकिंग में, स्मॉल इंडस्ट्रीज में, क्राफ्ट्स में, इन सारे प्लेसेस पे आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इनको फॉर्म कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एज पर इट्स नेम इंडिकेट्स इन द स्लाइड, कोऑपरेशन से मिला हुआ है। मींस कोऑपरेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कोऑपरेरी। को मीन्स विद, जिसके साथ, एंड ऑपरेरी मीन्स टू वर्क, जिसके साथ काम करना है उसको सपोर्ट करना। इट्स ऑल अबाउट द कोऑपरेशन। जो साथ में मिलकर काम करते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो एक सोसाइटी, एक प्लेस के थ्रू अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। सो इन नटशेल वी कैन से दैट दोज हु वांट टू वर्क टुगेदर विद सम कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कैन फॉर्म अ सोसाइटी। What are the some basic characteristics? क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डिफरेंशिएट करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। दूसरा, कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है। यहाँ पे कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर बायसनेस इनको कवर अप नहीं करते। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के थ्रू रजिस्टर्ड है। जो कैपिटल है वो उसके मेंबर्स के थ्रू कंट्रीब्यूट की जाती है। फॉर्मेशन कैसे होता है? एटलीस्ट 10 पर्सन्स होने चाहिए जिसके थ्रू उनका कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। वो सब एक ही नाम को प्रपोज करना चाहिए उन्हें। जितने भी उनके ड्राफ्ट्स हैं वो कंपनी के लीगल ऑब्लिगेशंस के थ्रू प्रिपेयर होने चाहिए। जो भी उनका एप्लीकेशन का पैटर्न है वो प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए, जिससे कि जो रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, वो उस सोसाइटीज को फॉर्म कर सके। नाउ देयर इज सम एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोल प्रोप्राइटरशिप को आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। जो भी पोजीशन है माइनर्स की पार्टनरशिप फॉर्म में, उसको इंडिकेट करनी है। Why should the liability of कर्ता be unlimited? Because he is the top person, because he is the main person. So his liability is unlimited. You have to define this question in your own word. Distinguish between partnership and joint Hindu family business. On the basis of membership, you have to explain this point. So for practice purpose, you have to do this. I hope you enjoyed the session. Thank you.